السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشا عرفان۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، آؤٹ فال روڈ میں گھر کی چھت گر گئی، 2 افراد زخمی۔ ریسکیو اہلکاروں نے ملبے سے 2 افراد کو زندہ باہر نکال لیا۔ گھر کی چھت کچی مٹی سے بنا رہے تھے کہ گر گئی۔ 25 سالہ ندیم، 20 سالہ فاروق کو میو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، روڈ ٹیپ روڈ تھوڑا ہاسپٹل کے قریب جو ہے وہ چھت گری ہے۔ چھت گرنے سے 2 افراد جو تھے وہ ملبے تلے دب گئے اور اس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ طلاب ملنے پر ریسکیو ٹیم میں جو ہے وہ موقع پر پہنچی اور 2 افراد کو جو ملبے تلے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمی ہونے والوں میں 25 سالہ ندیم اور 20 سالہ فاروق شامل ہیں، جن کو میو اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں ایک زخمی کی جو حالت ہے وہ نازک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق گھر کی چھت جو تھی وہ کچی مٹی سے بنا رہے تھے کہ اچانک جو چھت زوردار دھماکے سے نیچے گری۔ اس کے نتیجے میں یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حوالے سے اطلاع ملنے پر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی ہے۔ اس سے کہنا ہے کہ واقعی قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے کہ یہ چھت کیسے گری ہے۔ تاہم سے کہنا ہے کہ چھت بنانے والوں کی جو غفلت ہے اسی کی وجہ سے جو ہے وہ چھت گری ہے کہ کچی مٹی سے جو ہے وہ چھت بنا رہے تھے کہ اچانک وہ نیچے گری ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ جی بہت شکریہ مدثر۔ قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان سے ترکیہ کے سبکدوش ہونے والے قونصل جنرل لاہور کی الوداعی ملاقات ہوئی۔ 2 طرفہ تعلقات اور تجارتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ پاک ترکیہ دوستی میں سفارتی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ خورشید۔ حمزہ، اس ملاقات کے بارے میں بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان سے ترکیہ کے سبکدوش ہونے والے قونصل جنرل لاہور درموش باش توخ کی گورنر ہاؤس میں الوداعی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور تجارتی تعاون پر بات چیت کی گئی، جبکہ قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان کا ترک سرمایہ کاری پر اظہار مسرت، جبکہ اس موقع پر قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا کہ پاک ترک دوستی میں آپ کی سفارتی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان اور ترکیہ کی دوستی اخلاص اور اعتماد پر مبنی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے ہر مشکل وقت پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ پارلیمانی اور سفارتی روابط سے پاک ترک دوستی مزید مضبوط ہوئی ہے، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاع، تجارت، تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ پاکستان ترکی کی دوستی کی اہمیت کو نئی نسلوں تک پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان اور پنجاب کی عوام کا شکر گزار ہوں، بہت سی یادوں دل میں لے کر جا رہا ہوں، یہ کہنا تھا قونصل جنرل ترکیہ درموش باش توخ کا، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے عوام اخوت اور محبت کی گہری بنیاد رکھتے ہیں۔ ہر سطح پر تعاون مستقبل میں بھی جاری رہے گا، جبکہ ان کی ملاقات میں سیکرٹری جنرل پنجاب اسمبلی چودھری امر علی، پرنسپل سیکرٹری اماد حسین علی اور ترجمان اسمبلی راؤ ماجد علی بھی موجود رہے۔ ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ۔ جیلوں میں خطرناک قیدیوں کی وی وی آئی پی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ آئی جی جیل کا ایڈمن بلاک میں 4 کیٹیگریز پر پابندی پر عمل درآمد کا حکم۔ سزائے موت کے قیدیوں کے ایڈمن بلاک میں پہلے سے ہی ملاقات بند ہے۔ آئی جی جیل کی جانب سے مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، جیل میں خطرناک قیدیوں کی وی وی آئی پی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات نے ایڈمن بلاک میں 4 کیٹیگریز پر پابندی پر عمل درآمد کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے۔ تمام جیل سپرنٹ کو ٹی کے ملزمان، دہشت گردی، اغوا برتوان اور منشیات کی قسم میں ملوث قیدیوں کی ملاقات اب ایڈمن بلاک میں نہیں ہوگی۔ سزائے موت کے قیدیوں کی ایڈمن بلاک میں پہلے ہی ملاقات جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ 4 کیٹیگری میں صرف اسیران کے خونی رشتہ داروں یا متعلقہ وکیل کی ملاقات جو ہے وہ روٹین میں کروائی جائے گی۔ تمام کیٹیگریز کے قیدیوں کی ملاقات ہفتے میں ایک بار کی بجائے 2 دفعہ سسٹم میں جو ہے وہ کروانے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ قیدیوں کو سپلائی کرنے کے بعد والا کھانا جو ہے وہ کچن سے فوری ضائع نہیں کیا جائے گا۔ قیدیوں کے رکھنا بے حد کو مثالی گاؤں پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں دور دراز علاقوں کے لیے واٹر پمپس لگانے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے 30 جون 2026 کو ڈیڈ لائن دے دی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں گلیوں کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے پر زور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بعض منصوبوں کی تکمیل بروقت نہ ہونے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔
51, रावलपिंडी में 64, फैसलाबाद में 37, मुल्तान में ब्यूटिफिकेशन के 75 मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सरगोदा में 45, गुजरांवाला में 64, डीजी खान में 51, भावलपुर में 61, गुजरात में 53 और साहिवाल में 49 मंसूबे मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि साफ पानी की अदम दस्तियाबी की अवामी शिकायत का अजाला किया जाएगा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर मरम्मत और बहाली के लिए बाकायदा सिस्टम वज़ा किया जाए। तरक्याती मंसूबों की टाइमलाइन और तामीराती मयार को मद्देनजर रखना बेहद जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और एजाज़, जापान गवर्नमेंट की खसूसी दावत। वज़ीर आला मरियम नवाज 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान चली गई। वज़ीर आला का दौरा जापान पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जापानी हुकूमत की खुसूसी दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान चली गई। लाहौर एयरपोर्ट पर आला हुकाम ने वज़ीर आला और वफ़द को रुखसत किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी, सूबाई वज़रा मलिक सुहेब बर्थ, ज़ीशान रफ़ीक, मुआविन खुसूसी सानिया आशिक और आला सरकारी अफसरान भी वफ़द में शामिल हैं। मरियम नवाज जापान का सरकारी दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज टोक्यो, ओसाका और याकोहामा जाएंगी। जापान के आला काम से मुलाकातें, मुख्तलिफ इदारों के विजिट और ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का दौरा जापान पंजाब में सरमायाकारी के फरोग और इक्तिसादी ताल्लुकात की मजबूती के लिए अहम करार दिया जा रहा है। स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग वकार अजीम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का जायजा लिया गया। अक्टूबर में 1 लाख घरों का हदफ मुकम्मल करने के लिए इकदामात मज़ीद तेज़ किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 9,000 से ज़ायद घर मुकम्मल, जबकि 56,000 से ज़ायद ज़ेर तामीर हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बारे महकमा हाउसिंग पंजाब में ये अहम जायजा इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि अक्टूबर में 1 लाख घरों का हदफ मुकम्मल करने के लिए इक़दामात मज़ीद तेज़ किए जा रहे हैं, जबकि अब तक 75 अरब रुपए की रकम कर्जा जात की मद में मुस्तहिक खानदानों में तकसीम भी हो चुकी है। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि मजमूई तौर पर 9,000 से ज़ायद घर मुकम्मल, जबकि 56,000 से ज़ायद ज़ेरे तमीर हैं। 62,500 से ज़ायद खानदानों को पहली, जबकि 39,000 से ज़ायद खानदानों को दूसरी किस्त का इजरा कर दिया गया है। ये तमाम अमूर स्पेशल सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में डिस्कस हुए, जिसमें अपनी छत अपना घर जो प्रोग्राम है उसके अहदाफ के बारे में भी आगाह किया गया। तर्जुमान महकमा हाउसिंग की तरफ से बताया गया है कि इस मंसूबे के तहत ज़्यादा से ज़्यादा खानदानों को शामिल करने के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। आगाही मुहिम चलाने के लिए पब्लिक प्राइवेट इदारों से राब्ते बढ़ाए जाएंगे। महकमा हाउसिंग के तर्जुमान ने बताया कि दरख्वास्त जमा करवाने का तरीकाकार इंतहाई आसान और ऑनलाइन रखा गया है। ये स्पेशल सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अखुवत, बैंक ऑफ पंजाब, NRCP और RCDP के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। बहुत शुक्रिया ज़ैन। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मारिका हक में कामयाबी पर मिलने वाले एजाज़ात पर लेक सिटी लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद ने इस तकरीब में खसूसी शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि मुल्क में सियासी तब्दीलियों की वजह से मुआशी पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। गैर मुनासिब सियासत की वजह से सबसे बड़ा नुकसान कौम का हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज की जानिब से लेक सिटी लाहौर में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मिलने वाले एजाज़ात के एजाज़ में तकरीब सजी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद की तकरीब में खुसूसी शिरकत। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज, पैटर्न इन चीफ FPCCI SM तनवीर, सदर FPCCI आतिफ इकराम और दीगर शख्सियात भी तकरीब में शरीक हुई। हो जाए, हम दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनने जा रहे थे। 2017 में ड्रामा रचाया गया और मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। गैर मुनासिब सियासत की वजह से सबसे बड़ा नुकसान कौम का हुआ। पहले की तरह अब भी दहशत गर्दी का कला कमा करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ये बस्ट और बूम का जो साइकिल है और जो कॉन्स्पिरेसीज और एक अनरीजनेबल एक जो मैं कहूँगा गैर मुनासिब सियासत की नज़र होता रहा है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की कौम का हुआ।
साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज का इस मौके पर खिताब करते हुए कहना था कि इसहाक डार और मोहसिन नकवी को सितारा इम्तियाज मिलना बड़ी खुशी की बात है। चाहता हूँ हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेकर चले। बिजनेस कम्युनिटी की कोई चीज़ डार साहब के पास लेके जाऊँ तो डार साहब जो है ने आज तक कभी मुझे सवाल नहीं किया, बल्कि हमेशा डार साहब ने सिर्फ ये सारी की सारी समरी भी बन के आई है, और ये एक दफ़ा नहीं, हमारे मुल्क की खिदमत के लिए हमें साल से हमारा यही रिश्ता है। और जो मुल्क की खिदमत जिस तरीके से, शायद आपको इल्म भी नहीं कि जो कुछ इन्होंने मुल्क की फाइनेंस, मुल्क की कॉमर्स और आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉरेन अफेयर्स में जिस तरह काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो जंग हिंदुस्तान के साथ हुई, जिसके अंदर हमारी दफाई अफवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में जिस तरह साबित किया कि पाकिस्तान की दिफा नाकाबिल तस्खीर है, मेरी दुआ है कि हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े होके अपने अपने तौर पे किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान को माशी महाज पे उसका मकाम दिलवा सके जो उसका हक बनता है। एसएम तनवीर अपने खिताब में बोले कि इस साल जंग जीतने ने जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला कर दी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत के साथ खड़ी है। सेलिब्रेट तो हर साल की हमने जश्न आज़ादी, सच बताऊं तो ये नॉर्मल से ज्यादा खुशी हो रही है। ये जो जंग हुई, जिस तरह से पाक फौज लड़ी, जिस तरह से दुश्मन को जिच किया गया, इसमें हमें भी कदर पड़ी कि आज़ादी क्या चीज़ है। पाकिस्तान पूरी कौम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। डार साहब, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुल्की खिदमात को सराहा। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शील्ड से नवाजा और गुलदस्ता पेश किया। तमगा इम्तियाज़ मिलने के बाद प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की प्रोसिक्यूशन ऑफिस आमद। फरहाद अली शाह का ऑफिस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कानून के शोबा में बेहतरीन खदमात पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया है। सैयद फरहाद अली शाह प्रोसिक्यूशन ऑफिस पहुंचे तो एडमिन डायरेक्टर मोहम्मद अरशद फारूकी समेत दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तमगा इम्तियाज मिलने की खुशी में प्रोसिक्यूटर जनरल ने केक काटा। इस मौके पर फरहाद अली शाह ने कहा, ये तमगा इम्तियाज मुझे नहीं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को दिया गया है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान की मेहनत का ही नतीजा है कि पहली बार पंजाब की किसी प्रोसिक्यूटर जनरल को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, और ये मेरे लिए भी बड़े एजाज की बात है। प्रोसिक्यूशन ऑफिस के तमाम अफसरान और मुलाजमीन ने प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनके साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। लाहौर तालीमी बोर्ड में मारिका हक की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। फौज पाकिस्तान की कुर्बानियों, जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर तालीमी बोर्ड में मार्का हक के उन्वान से तकरीब सजाई गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर सितारा इम्तियाज और कर्नल रिटायर्ड साजिद हमीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर और कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुल रहमान भी शरीक हुए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर ने कहा कि आज़ादी खुद नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है। पाकिस्तान ने 1 घंटे में भारत को शिकस्त देकर दुनिया को हैरान कर दिया। कर्नल रिटायर्ड साजिद हमीद ने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। भारत का फौजी बजट बड़ा होने के बावजूद हमने हर महाज पर उसे शिकस्त दी। सॉवरेनिटी इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। यानी आपको अपनी आज़ादी छीननी पड़ती है या लेनी पड़ती है या बनानी पड़ती है। 1 घंटे के अंदर, विद इन 1 आवर, 40-50 मिनटों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने 6-7 की रात जो थी उसके अंदर सिर्फ भारत को शिकस्त नहीं दी, यानी इंडियन एयरफोर्स को, बल्कि तारीख का एक नक्शा बदल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिनों के अंदर आपकी लैंड फोर्स को जरूरत ही नहीं पड़ी कि जाके तो जमीन के ऊपर किसी का कब्जा करे। एयर में रही, एयर में सॉर्ट आउट किया, और आज ये हालत है कि इंडिया जो हमसे 6 गुना ज़्यादा ताकतवर है, जिसका बजट हमसे 10 टाइम्स मोर है एज फार एज द डिफेंस बजट इज कंसर्न। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर ने कहा कि पाक फौज की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मई के महीने में जो 10 मई को एक मार्का हुआ,
اس کا ایک اتنا اثر آیا کہ ایک پوری دنیا میں پیراڈائم شفٹ ہو گئی. پاکستان قوم، پاکستان نیشن ایک ایک بہت بڑی پاور بن کے ابھری. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے. تو اسی پیٹرن پہ اسی ہماری افواج کو سلام پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ہم اس کو اپنے آنے والے بچوں کو بھی یہ بتا سکیں کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑا مارکا تھا. تقریب میں مقررین نے واضح کیا کہ جب قوم اور فوج ایک ہوں تو کوئی بھی دشمن میدان میں نہیں ٹھہر سکتا.